In physics, motion is the change in an object's position over time, relative to a frame of reference. It's a fundamental concept described using quantities like distance, displacement, speed, velocity, and acceleration, with its study divided into kinematics, describing motion, and dynamics, studying forces causing motion. Everything in the universe is in motion, as there is no absolute rest, only relative motion. This video provides a basic definition of motion in physics. Key concepts. 1. Reference frame, an observer's viewpoint, crucial for determining if something is moving. 2. Distance versus displacement. Distance is total path. Displacement is shortest distance from start to end, has direction. 3. Speed versus velocity. Speed is how fast. Velocity includes speed and direction, or vector. And 4. Acceleration. The rate of change of velocity, speeding up, slowing down, or changing direction. Types of motion. 1. Linear motion, straight line movement, e.g., a car on a straight road. 2. Rotational motion, spinning around an axis, e.g., a spinning top. 3. Periodic, oscillatory motion, repeats at regular intervals, e.g., a pendulum, vibrating string. 4. Projectile motion, curved path under gravity, e.g., a thrown ball. And 5. Rolling motion, combination of translation and rotation, e.g., a rolling wheel. You can watch this video to learn about different types of motion. Study of motion. Kinematics describes how objects move, equations of motion. Dynamics studies the causes of motion, forces and energy. Example. A person walking in a train is in motion relative to the train, kinematics, but if the train is moving, that person is also in motion relative to the ground, dynamics. भौतिकी में गति किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाला परिवर्तन है, जो संदर्भ के एक फ्रेम के सापेक्ष होता है। यह एक मूलभूत अवधारणा है जिसे दूरी, विस्थापन, गति, वेग और त्वरण जैसी राशियों का उपयोग करके वर्णित किया जाता है, और इसका अध्ययन गति का वर्णन और गतिज, गति उत्पन्न करने वाले बलों का अध्ययन में विभाजित है। ब्रह्मांड में सब कुछ गतिमान है, क्योंकि पूर्ण विराम जैसी कोई चीज नहीं है, केवल सापेक्ष गति है। यह वीडियो भौतिकी में गति की बुनियादी परिभाषा प्रदान करता है। महत्वपूर्ण अवधारणाएं। 1. संदर्भ फ्रेम, किसी प्रेक्षक का दृष्टिकोण, जो यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि कोई वस्तु गतिमान है या नहीं। 2. दूरी बनाम विस्थापन, दूरी कुल पथ है। विस्थापन आरंभ से अंत तक की सबसे छोटी दूरी है, इसमें दिशा होती है। 3. गति बनाम वेग, गति का अर्थ है कितनी तेजी से, वेग में गति और दिशा दोनों शामिल होते हैं, एक सदिश राशि। और 4. त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर, तेज होना, धीमा होना या दिशा बदलना। गति के प्रकार। 1. रेखीय गति, सीधी रेखा में गति, उदाहरण के लिए एक सीधी सड़क पर कार। 2. घूर्णी गति, किसी अक्ष के चारों ओर घूमना, उदाहरण के लिए एक घूमता हुआ लट्टू। 3. आवधिक, दोलन गति, नियमित अंतराल पर दोहराई जाती है, जैसे एक पेंडुलम, कंपन करती हुई डोरी। 4. प्रक्षेपीय गति, गुरुत्वाकर्षण के अधीन वक्र पथ, उदाहरण के लिए फेंकी गई गेंद। और 5. रोलिंग मोशन, ट्रांसलेशन और रोटेशन का संयोजन, जैसे एक लुढ़कता हुआ पहिया। आप इस वीडियो को देखकर गति के विभिन्न प्रकारों के बारे में जान सकते हैं। गति का अध्ययन। गतिकी वस्तुओं की गति का वर्णन करती है, गति के समीकरण। गतिविज्ञान गति के कारणों, बल और ऊर्जा का अध्ययन करता है। उदाहरण, ट्रेन में चल रहा व्यक्ति ट्रेन के सापेक्ष गति में होता है, गतिकी। लेकिन यदि ट्रेन चल रही है, तो वह व्यक्ति जमीन के सापेक्ष भी गति में होता है, गतिकी।
In physics, rest is the state of an object when its position doesn't change over time relative to a specific frame of reference or its surroundings, meaning it's stationary. Crucially, rest is relative, not absolute. An object, like you in a chair, might be at rest relative to the room but in motion relative to the Earth orbiting the Sun. So, a tree is at rest to a person on Earth but moving with Earth in space, while a passenger in a moving train is at rest relative to the train but in motion relative to someone outside. Key characteristics of rest. 1. No change in position. An object at rest maintains its location over time. 2. Relative to a reference. Rest only makes sense when compared to something else, a reference point or frame. And 3. Absence of motion. It's the opposite of motion, which is the change in position over time. Examples. 1. A book on a table. 2. A parked car. And 3. A wall clock. Its hands are in motion, but the clock body is at rest relative to the wall. Why it's relative? There is no such thing as absolute rest, because everything in the universe is moving in relation to other celestial bodies, Earth, Sun, galaxies. Contrast with motion. Rest, position doesn't change with time relative to surroundings. Motion, position does change with time relative to surroundings, e.g., a running person or flying bird. भौतिकी में विराम किसी वस्तु की वह अवस्था है जब किसी विशिष्ट संदर्भ फ्रेम या उसके परिवेश के सापेक्ष समय के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी वह स्थिर होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि विराम सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं। कोई वस्तु, जैसे आप कुर्सी पर बैठे हुए, कमरे के सापेक्ष विराम अवस्था में हो सकती है, लेकिन सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही पृथ्वी के सापेक्ष गतिमान हो सकती है। इसलिए पृथ्वी पर बैठे व्यक्ति के लिए एक पेड़ विराम अवस्था में है, लेकिन अंतरिक्ष में पृथ्वी के साथ गतिमान है, जबकि चलती ट्रेन में बैठा यात्री ट्रेन के सापेक्ष विराम अवस्था में है, लेकिन बाहर बैठे किसी व्यक्ति के सापेक्ष गतिमान है। विश्राम की प्रमुख विशेषताएं। 1. स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं। विराम अवस्था में कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बनाए रखती है। 2. संदर्भ के सापेक्ष विराम का अर्थ तभी समझ में आता है जब इसकी तुलना किसी अन्य चीज, संदर्भ बिंदु या फ्रेम से की जाती है। और 3. गति का अभाव, ये गति का विपरीत है, जो समय के साथ स्थिति में परिवर्तन है। उदाहरण। 1. मेज पर रखी एक किताब। 2. खड़ी हुई कार। और 3. एक दीवार घड़ी, जिसकी सुइयां गति में है, लेकिन घड़ी का शरीर दीवार के सापेक्ष स्थिर है। ये सापेक्ष क्यों है? पूर्ण विश्राम जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड में सब कुछ अन्य खगोलीय पिंडों, पृथ्वी, सूर्य, आकाशगंगाओं के संबंध में गतिमान है। गति के विपरीत विश्राम, परिवेश के सापेक्ष समय के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गति, परिवेश के सापेक्ष समय के साथ स्थिति बदलती रहती है। उदाहरण के लिए, दौड़ता हुआ व्यक्ति, उड़ता हुआ पक्षी। Physics classifies motion into fundamental types like translational, linear, circular, rotational, and oscillatory, with many specific forms such as rectilinear, straight line, periodic, projectile, and random motion, all describing how objects change position or orientation over time, ranging from simple straight line movements to complex repeating patterns like a pendulum swing or a spinning top's rotation. Here are the main categories and examples. 1. Translational motion, change in position. 1. Linear motion, movement along a straight line. Rectilinear, straight line path, e.g., a car on a straight road. Curvilinear, curved path, e.g., a ball thrown in the air, but not in a perfect arc. 1. Circular motion, movement in a circular path, e.g.,
hands of a clock, planets orbiting. 2. Projectile motion, a type of curvilinear motion under gravity, with both horizontal and vertical displacement, e.g., a launched rocket. 2. Rotational motion, spinning. Movement of a body around a fixed axis or center, e.g., a spinning top, Earth rotating on its axis. This video shows examples of rotational motion. 3. Oscillatory, vibratory motion, back and forth. Repetitive movement between 2 points, e.g., a swing, a pendulum, a spring bobbing. Simple harmonic motion, SHM, a specific type of oscillation where the restoring force is proportional to displacement, like a perfect pendulum. This video provides examples of oscillatory motion. 4. Other important types. 1. Periodic motion. Repeats at regular time intervals, includes circular and oscillatory motion. 2. Uniform motion. Constant velocity, speed and direction. 3. Non-uniform motion. Changing velocity, speed or direction. And 4. Random motion. Unpredictable, no fixed pattern, e.g., a gas molecule. These categories often overlap, as complex movements, like a rolling ball, combine translational and rotational elements. एकीकृत करता है जैसे स्थानांतरीय, रेखीय, वृत्ताकार, घूर्णी और दोलनशील, साथ ही कई विशिष्ट रूप जैसे कि सरल रेखीय, सीधी रेखा, आवधिक, प्रक्षेपीय और यादृच्छिक गति, ये सभी वर्णन करते हैं कि वस्तुएं समय के साथ स्थिति या अभिविन्यास कैसे बदलती हैं, जो सरल सीधी रेखा गति से लेकर पेंडुलम के झूलने या लट्टू के घूर्णन जैसे जटिल दोहराव वाले पैटर्न तक होती हैं। यहाँ मुख्य श्रेणियां और उदाहरण दिए गए हैं। 1. स्थानांतरणीय गति, स्थिति में परिवर्तन। 1. रेखीय गति, सीधी रेखा में गति। रेखीय, सीधी रेखा वाला पथ, उदाहरण के लिए एक सीधी सड़क पर कार। वक्ररेखीय, घुमावदार पथ, उदाहरण के लिए हवा में फेंकी गई गेंद, लेकिन पूर्ण चाप में नहीं। 1. वृत्ताकार गति, वृत्ताकार पथ में गति, उदाहरण के लिए घड़ी की सुइयां, ग्रहों की परिक्रमा। 2. प्रक्षेपीय गति, गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक प्रकार की वक्ररेखीय गति, जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों विस्थापन होते हैं, उदाहरण के लिए एक प्रक्षेपित रॉकेट। 2. घूर्णी गति, चक्कर। किसी वस्तु का एक निश्चित अक्ष या केंद्र के चारों ओर घूमना, उदाहरण के लिए घूमता हुआ लट्टू, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। यह वीडियो घूर्णी गति के उदाहरण दिखाता है। 3. दोलन, कंपन गति, आगे पीछे। दो बिंदुओं के बीच बार बार होने वाली गति, जैसे झूला, पेंडुलम, स्प्रिंग का हिलना। सरल आवर्त गति, SHM, एक विशेष प्रकार का दोलन जिसमें प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती होता है, जैसे एक पूर्ण पेंडुलम। यह वीडियो दोलन गति के उदाहरण प्रस्तुत करता है। 4. अन्य महत्वपूर्ण प्रकार। 1. आवधिक गति, नियमित समय अंतराल पर दोहराई जाती है, इसमें वृत्ताकार और दोलन गति शामिल है। 2. एक समान गति, स्थिर वेग, गति और दिशा। 3. असमान गति, वेग, गति या दिशा में परिवर्तन। और 4. यादृच्छिक गति, अप्रत्याशित, कोई निश्चित पैटर्न नहीं, उदाहरण के लिए एक गैस अणु। ये श्रेणियां अक्सर एक दूसरे से ओवरलैप होती हैं, क्योंकि जटिल गतियों, जैसे लुढ़कती हुई गेंद, में स्थानांतरणीय और घूर्णीय तत्व संयुक्त होते हैं। In physics, uniform motion means an object moves in a straight line at a constant speed, covering equal distances in equal time intervals, resulting in zero acceleration and constant velocity. Its movement with steady pace and unchanging direction, like a car on a straight, flat road with cruise control set, or a steady moving train on straight tracks. Key characteristics. 1. Constant velocity, speed and direction stay the same. 2. Zero acceleration, since velocity isn't changing, there's no acceleration, equals 0.
and 3 equal distances, equal times, the object travels the same distance for every time unit, e.g., 5 meters in 1 second, then another 5 meters in the next second. Examples. 1. A car at a steady 60 miles per hour on a straight highway. 2. A planet moving at a constant rate in its orbit. Though orbits are circular, the speed can be uniform. And 3. A lighthouse beam rotating at a constant speed. Contrast with non-uniform motion. Non-uniform motion or accelerated motion involves changes in speed or direction, like a ball rolling down a hill or a car braking, where distances covered in equal times are unequal. भौतिकी में एक समान गति का अर्थ है कि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में स्थिर गति से चलती है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, जिसके परिणामस्वरूप त्वरण शून्य और वेग स्थिर रहता है। ये स्थिर गति और अपरिवर्तित दिशा वाली गति है, जैसे क्रूज कंट्रोल पर चल रही कार या सीधी पटरियों पर स्थिर गति से चल रही ट्रेन। मुख्य विशेषताएं। 1. स्थिर वेग, गति और दिशा एक समान रहती है। 2. शून्य त्वरण, चूंकि वेग नहीं बदल रहा है, इसलिए कोई त्वरण नहीं है, (0). और 3. समान दूरी, समान समय, वस्तु प्रत्येक समय इकाई के लिए समान दूरी तय करती है, उदाहरण के लिए 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर अगले सेकंड में 5 मीटर। उदाहरण 1. एक सीधी राजमार्ग पर 60 मील प्रति घंटे की स्थिर गति से चल रही कार। 2. एक ग्रह जो अपनी कक्षा में स्थिर गति से घूम रहा है, यद्यपि कक्षाएं वृत्ताकार होती हैं, गति एक समान हो सकती है। और 3. एक प्रकाश स्तंभ की किरण जो स्थिर गति से घूम रही है। असमान गति के विपरीत। असमान गति या त्वरित गति में गति या दिशा में परिवर्तन शामिल होते हैं, जैसे कि एक गेंद का पहाड़ी से नीचे लुढ़कना या कार का ब्रेक लगाना, जहां समान समय में तय की गई दूरी असमान होती है। भौतिकी में एक समान गति का अर्थ है कि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में स्थिर गति से चलती है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, जिसके परिणामस्वरूप त्वरण शून्य और वेग स्थिर रहता है। ये स्थिर गति और अपरिवर्तित दिशा वाली गति है, जैसे क्रूज कंट्रोल पर चल रही कार या सीधी पटरियों पर स्थिर गति से चल रही ट्रेन। मुख्य विशेषताएं। 1. स्थिर वेग, गति और दिशा एक समान रहती है। 2. शून्य त्वरण, चूंकि वेग नहीं बदल रहा है, इसलिए कोई त्वरण नहीं है, (0). और 3. समान दूरी, समान समय, वस्तु प्रत्येक समय इकाई के लिए समान दूरी तय करती है, उदाहरण के लिए 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर अगले सेकंड में 5 मीटर। उदाहरण 1. एक सीधी राजमार्ग पर 60 मील प्रति घंटे की स्थिर गति से चल रही कार। 2. एक ग्रह जो अपनी कक्षा में स्थिर गति से घूम रहा है, यद्यपि कक्षाएं वृत्ताकार होती हैं, गति एक समान हो सकती है। और 3. एक प्रकाश स्तंभ की किरण जो स्थिर गति से घूम रही है। असमान गति के विपरीत। असमान गति या त्वरित गति में गति या दिशा में परिवर्तन शामिल होते हैं, जैसे कि एक गेंद का पहाड़ी से नीचे लुढ़कना या कार का ब्रेक लगाना, जहां समान समय में तय की गई दूरी असमान होती है। In physics, non-uniform describes motion or a property that changes over time or space, meaning it's inconsistent. For example, non-uniform motion, or variable motion, means an object covers unequal distances in equal time intervals, having changing speed or direction, unlike uniform motion where speed and distance per time are constant, often seen in accelerating cars or freely falling objects. Key characteristics of non-uniformity in motion. 1. Unequal distance in equal time. The core definition is covering varying distances in identical time segments, e.g., 10 meters in ones,
then 20 meters in the next ones. 2. Changing velocity, speed, direction, or both are not constant, velocity changes. 3. Non-zero acceleration. Since velocity changes, there is acceleration or deceleration that isn't zero and isn't constant. And 4. Graphically, a distance time graph shows a curved line, and a velocity time graph shows a sloped line, indicating changing speed. Examples. 1. Car speeding up, slowing down, a car at a traffic light or on a busy road. 2. Free fall. A ball dropped from a height accelerates and covers more distance each second as it falls. And 3. A swimmer, moving at varying speeds in water. Non-uniform versus uniform. Uniform motion, constant speed, constant distance in equal times, straight line on distance time graph. Non-uniform motion, changing speed, direction, unequal distances in equal times, curved line on distance time graph. भौतिकी में गैर समान गति का अर्थ है ऐसी गति या गुणधर्म जो समय या स्थान के साथ बदलता रहता है, यानी कि वह असंगत है। उदाहरण के लिए, गैर समान गति या परिवर्तनशील गति का अर्थ है कि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, जिसकी गति या दिशा बदलती रहती है, जबकि समान गति में गति और प्रति समय दूरी स्थिर रहती है, जो अक्सर त्वरित कारों या स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में देखी जाती है। गति में असमानता की प्रमुख विशेषताएं। 1. समान समय में असमान दूरी। मूल परिभाषा समान समय खंडों में अलग अलग दूरियों को तय करना है। उदाहरण के लिए, 1 सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 20 मीटर। 2. वेग में परिवर्तन, गति, दिशा या दोनों स्थिर नहीं है, वेग बदलता है। 3. गैर शून्य त्वरण, चूंकि वेग बदलता है, इसलिए त्वरण या मंदन होता है जो शून्य नहीं होता और स्थिर भी नहीं होता। और 4. ग्राफिक रूप से, दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा दिखाता है और वेग समय ग्राफ एक ढलान वाली रेखा दिखाता है, जो गति में परिवर्तन को इंगित करता है। उदाहरण। 1. कार की गति बढ़ाना, धीमी करना, ट्रैफिक लाइट पर या व्यस्त सड़क पर खड़ी कार। 2. मुक्त पतन, ऊंचाई से गिराई गई गेंद त्वरित होती है और गिरने के दौरान प्रति सेकंड अधिक दूरी तय करती है। और 3. एक तैराक, पानी में अलग अलग गति से चलना। गैर समान बनाम समान। एक समान गति, स्थिर गति, समान समय में स्थिर दूरी, दूरी समय ग्राफ पर सीधी रेखा। असमान गति, गति, दिशा में परिवर्तन, समान समय में असमान दूरी तय करना, दूरी समय ग्राफ पर वक्र रेखा।